All right. Uh, Roshan, you can hear me and you can look at the slides. Yes, sir. Okay. So we now will be looking at our next uh, lecture on cryptography and network security. Uh, it is, in fact, I had completed last time. Let me see. Uh, okay, we have done till lecture number 16 last time. So this will be our 17th lecture. Okay, 17th and 18th today, which is dealing with the symmetric key maths. Okay. The number, I'll correct this number. It's 17, 18 today. All right. Okay. Uh, we are starting when we started symmetric key cryptography. I told you that we will be doing some essential maths which is required for cryptography. And when we cover symmetric key cryptography, we learn the maths related to symmetric key cryptography. In that connection, initially we learned the maths about the mod algebra. And I assured you that whatever maths we will learn, we will use it extensively. And you have seen up till now, whatever we have done in symmetric cryptography, you have used mod algebra extensively. Well, there is nothing, no aspect of mod algebra which we learned as a maths and you did not use extensively in all your cryptography, which we did up till now. Okay, so in the same connection, there was one aspect of maths dealing with symmetric key cryptography, which we had not covered earlier and which we are going to cover today, because now this is that part of the maths which we need again extensively for AES. Up till now, whatever maths we learned, it sufficed till DES. DES तक हमारा उससे काम हो गया. लेकिन अब AES जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एडिशनल मैथ सीखना है. देयर इज ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ मैथ्स जो हमें सीखना है और उसमें फिर इस्तेमाल भी होगा. एंड दैट इज finite field algebra. Finite field algebra, GF, Görlitz field. This same finite field is also called at the name of mathematician Görlitz field algebra, GF 2 to the power n. I'll just explain what is this G 2 to the power n thing coming in this and what is the finite field. Okay. Okay. Up till now, we did the integer maths, but by using mod algebra, we contained the range of data. What we did. Okay. When we said Z, it was huge. Starting from minus infinity, going till 0,
continuing with 1, 2 and continuing के plus infinity. That was integer set. We said when we learned about the mod algebra, we said it's too huge a set. हमारे केस में we have to contain it the integers within a range of numbers, and we learned about another set which was called Zn. And we will say Zn here, we went, okay, we will do the integer math, but our elements will be restricted by this n, which means our Zn set can have only the numbers between 0 till n minus 1. 0, 1, 2, and we just contained the set size because of this Zn within this. We took the slice out of this only this much because of Zn. ये n क्या था? ये mod n. जब हमने mod n इस पूरे पे अप्लाई किया, हर नंबर पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, we mapped everything of that integer thing within this. That is what we learned. This n was actually mod n. We applied mod n in this case. तो अलजेब्रा हमारा वही था जो हमने सीखा हुआ था, इंटीजर अलजेब्रा, मगर उसको हमने सेट के साइज को कंटेन किया बाय Zn. ये हमने लर्न किया था मॉड्यूलस अलजेब्रा में. अब Zn की बजाय वी आर सेइंग GF टू द पावर n. ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि जब हमें इसमें हमने इंटीजर अलजेब्रा ही की स्टाइल में कंप्यूटेशंस की थी सारी जगह. इसमें हमें अच्छा, और वहाँ जब हमें उस जगह हमने देखा डीएस वगैरह में बाइनरी का मामला आया, तो हमने उन्हें बिट लेवल कंप्यूटेशन से ही हैंडल किया. यानी अगर ये नंबर था और इसको हमें कोई एक्सक्लूसिव और करना है, कोई ऐड करना है, कोई सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने बाइनरी लेवल अलजेब्रा, बिट लेवल अलजेब्रा से ही काम चलाया. वहाँ पर हमने ये किया. अब अगर हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास वर्ड्स हैं, बाइनरी बिट्स के वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स का साइज n बिट है. अब ये n बिट, n is not mod, this n is not modulus, this is the size of a word which in bits, so it is an n bit word. n could be 8, 16, 32, जिस तरह प्रोसेसर्स के होते हैं वर्ड के साइज, वर्ड n बिट वर्ड. अब अगर हम n बिट वर्ड के को इन अलजेब्रा इस्तेमाल करना चाहें, अगर हम इसको अब अलजेब्रिकली ट्रीट करना चाहें, मैथमेटिकली या अलजेब्रिकली इस मामले को डील करना चाहें, तो फिर हम कैसे करेंगे इस मामले को? n बिट वर्ड्स के अलजेब्रा या कंप्यूटेशन को करने के लिए, नॉट बिट बाय बिट ऑपरेशन, ये तो हमें आते थे हमेशा से बिट. अब हम इस वर्ड को अलजेब्रिकली कंप्यूटेशनली हैंडल करना सीखना चाहते हैं. उसका जो अलजेब्रा है वो है GF टू द पावर n या फाइनाइट फील्ड का अलजेब्रा. ये क्या करेगा? ये चीज़ों को कंटेन कर देगा इन द फॉर्मेट ऑफ 2 टू द पावर n के अराउंड. वो कैसे? लेट्स सी कि अब हमें ऐसे वर्ड्स की अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे n बिट वर्ड्स की करनी हो फॉर मॉडर्न ब्लॉक साइफर लाइक AES हमारे केस में है, जिसमें हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या होगा? लाइक AES में इस्तेमाल होता है.
एन बिट से जो वर्ड्स की ऑल काइंड ऑफ वैरायटी है जो बन सकती है वो यही है। इसने मैंने कहा कंटेन करेगा हमें अप टू 2 to the power n पॉसिबिलिटी। तो अगर n बिट का नंबर है, 4 बिट का नंबर है, तो ऑल जीरो से लेकर ऑल वंस तक, 0 से लेकर 15 तक, विच इज एक्चुअली 2 to the power 4 -1, ये हाईएस्ट नंबर है। और इसका काउंट जो है सारा, इट इज 2 to the power 4, 16 पॉसिबिलिटीज हैं जो 0 से लेकर 15 तक चल रही हैं। इसी तरह फॉर एनी n बिट नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का साइज 2 to the power n होगा, 0 से लेकर 2 to the power n-1 तक। तो ये अब क्योंकि इसमें कंटेन कर रहे हैं वर्ड्स के काउंट को, इसलिए 2 to the power n का आया। वहां पे मॉड के लिए आया था, उसमें एक्चुअल तादाद ही n ने कंटेन कर दी थी। यहाँ अब तादाद ऐसे वर्ड्स की मैक्सिमम 2 to the power n तक जाएगी। इनकी पॉसिबिलिटीज 2 to the power n है, इसलिए इस अलजेब्रा का नाम GF 2 to the power n है। वहां पर मॉड n था, दो डिफरेंट चीजें थी, इसलिए डिफरेंट मामला थे। तो अब इसके जरिए से हमें क्या फायदा होगा कि हमें बाइनरी नंबर्स के वर्ड जो है उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने को सीखना है। अच्छा, इट इज नॉट दी नॉर्मल जो आपने एक बाइनरी वाले ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन सीखे हुए हैं, इट्स नॉट दैट। इट हैज इट्स स्पेसिफिक रूल्स फॉर इट्स अलजेब्रा जो यूज होंगे। बाज़ जगह आपको वो बाइनरी ऑपरेशन बीच में इस्तेमाल होंगे, बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एडिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स, subtracting of binary numbers, multiplying as you have been doing two binary numbers और division, ऐसा नहीं है। इसके रूल्स हैं GF 2 to the power n अलजेब्रा के, और उसके तहत जो कैलकुलेशंस होंगे वो वैलिड कैलकुलेशन। तो हम GF 2 to the power n का इसलिए सीख रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हमें जो हेल्प मिलती है समझने में, जिससे हम ये सीखेंगे कि हाउ टू कैरी आउट दीज डिफरेंट ऑपरेशन इन GF 2 to the power n अलजेब्रा, वो हमें मिलती है पॉलिनोमियल अरिथमेटिक्स। पॉलिनोमियल अरिथमेटिक हमने कॉलेज अलजेब्रा में सीखा था, वो हमें आता है। हम उसकी मदद से GF 2 to the power n को सीखेंगे और मे बी टिल द एंड हम उसको यूज भी करेंगे। तो हम टिल द एंड, हमें सबसे ज्यादा appropriate way of carrying out calculations in GF 2 to the power n is using the polynomial arithmetic. Okay? Okay. Polynomial arithmetic में आपको ये दो बातें सीखनी होंगी। पहले हम ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल अरिथमेटिक को सीखेंगे जो आम हमें पता है, और फिर हम देखेंगे कि फाइनाइट फील्ड में ये पॉलिनोमियल अरिथमेटिक हमें कैसे काम आएगा। ये उसके दो पार्ट होंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने में हम देखेंगे मॉड 2 काम आएगा, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मॉड mx काम आएगा। इस बात को हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम ये सीखते हैं कि ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल अरिथमेटिक क्या है, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे कि हाउ कैन वी यूज इट फॉर कैरिंग आउट GF 2 to the power n कैलकुलेशंस बाय दीज टू रूल्स। ये हम इसको रिलेट करेंगे। पहले ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल अरिथमेटिक, ओके, उसमें एक एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अगर करनी हो दो पॉलिनोमियल्स की, तो ओके, पॉलिनोमियल्स इस तरह की इक्वेशंस विद डिफरेंट पावर्स ऑफ n। ठीक, बहुत जनरल पॉलिनोमियल अगर हम लिखें fx, इसके अंदर देयर विल बी
जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर के, x3 के, x2 के, x के टर्म्स होते हैं, इस तरह एक पॉलिनोमियल का मतलब है a0 x0, a1 x1 जनरल, ai xi बीच में अगर मैं लिखूं, an-2 xn-2 आखिर में axn। तो x की पावर्स 0 से लेकर n-1 तक चेंज हो सकती हैं एक पॉलिनोमियल में। इट कैन हैव x0 x1 x2 x3। हर x की पावर वाली टर्म के साथ एक कोएफिशिएंट हो सकता है जो एक इंटीजर कोएफिशिएंट होगा। हमारी ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल में कोई भी इंटीजर कोएफिशिएंट हो सकता है। a0 है, a1 है, a2 है, an-2। इट कैन बी एनी नंबर इन इंटीजर मैथ्स। वो अनाउंस थी? अच्छा, नहीं वो एडमिशन हिसाब से तो जाना पड़ेगा मुझे, वो क्योंकि वो अब तो उस दिन उन्होंने भी कहा है ना कि भाई एडमिशन को देखो। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने पहले अनाउंस किया। अच्छा, ओके, वो डेटा आपने मेरे से डिस्कस नहीं किया। डेटा डिस्कस होना वो है सफा दिखा अभी नहीं लिया वो ना। Okay, again as usual, we will have a short break. There is a departmental meeting I have, but I expect it is a short meeting, maybe some 15 minutes or to half an hour. When I come back, I will again inform you on the group and we'll start from here, okay? Okay, sir. All right. All right, students, we restarting our lecture where we stopped and continue with our maths, this remaining part of the maths जिसमें हम सीख रहे थे finite field GF2 to the power n. Okay, ये हमने कहा कि भाई we are dealing with normal polynomial arithmetic. Okay,
मैंने आपको बताया, पहले तो हम पॉलिनोमियल देखें कि क्या है। पॉलिनोमियल इज लाइक दिस, ये पॉलिनोमियल के एग्जांपल है कि कोई इक्वेशन जो x की पावर्स में है, x की जीरो का मतलब है कि ये 1 हो गया, आगे x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x5, सो एक कांस्टेंट नंबर से लेकर और x की तमाम पावर्स या उसका सबसेट उसमें होगा, और उसके साथ ये कोएफिशिएंट्स होंगे। ये कोएफिशिएंट्स आम पॉलिनोमियल में इंटीजर नंबर हो सकते हैं, एनी प्लस माइनस नंबर्स और जीरो। ठीक, जो जीरो होगा जब ये, तो वो वाला पावर का फैक्टर गायब हो जाएगा। यानी अगर फर्स्ट करें x1 वाले के साथ जो a1 है ये जीरो है, तो इसके अंदर x की टर्म नहीं होगी। ये एक पॉलिनोमियल की जनरल शक्ल है। इस पॉलिनोमियल की ये एग्जांपल्स हैं कि हम कहें कि यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल की एग्जांपल है लाइक दिस कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये जो 2 लिखा होता है इसका मतलब है 2 इंटू एक्स एज पावर जीरो। एक्स एज पावर जीरो क्योंकि 1 होता है, 1 इंटू 2। तो यहाँ पे आपको एक फिगर अगर खाली कांस्टेंट की नजर आए, इसका मतलब है कि ये इसके साथ पावर एक्स की जीरो है। फिर यहाँ x की 1 वाली टर्म नहीं है क्योंकि लेट से उसका कोएफिशिएंट जीरो था, तो जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो गायब हो गई। फिर x की 2 वाली टर्म है, इसका कोएफिशिएंट इसमें 1 है इस जगह, ये x की 2 की टर्म है, कोएफिशिएंट 1। फिर ये x की 3 वाली टर्म है, कोएफिशिएंट 1। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। अनदर एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल कि आपने यहाँ पर ये कांस्टेंट विद हिडन x की पावर जीरो, ये x1 विथ कोएफिशिएंट -1, ये x1 है और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर -1 है, माइनस भी है और यहाँ 1 है। ये x2 है और इसका कोएफिशिएंट यहाँ 1 है। ठीक, तो हम कहेंगे कि यार ये एक और पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स हो गई हमारी। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि यार पॉलिनोमियल का जो अलजेब्रा हमने कॉलेज टाइम में सीखा था, हम उसको रिवाइज करें पहले। तो उसमें क्या है, कैन वी ऐड टू पॉलिनोमियल, कैन वी सब्ट्रैक्ट टू पॉलिनोमियल्स, कैन वी मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल। ये हमने आम पॉलिनोमियल्स के लिए जिसके कोएफिशिएंट इंटीजर नंबर्स हैं, ऐसी पॉलिनोमियल्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना हम पहले सीखना चाहते हैं। अच्छा, पहली बात, ओके, ऐड करना दो पॉलिनोमियल्स का ऐड, ये दी हुई हैं दो पॉलिनोमियल, इनको ऐड करना है। असूल या सब्ट्रैक्ट करना, दोनों का एक ही असूल है। क्या करें, पॉलिनोमियल्स को लिखें, उनके जो एक जैसी पावर वाले नंबर्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लें। ये क्या है, ये x0 वाली टर्म का कोएफिशिएंट है, ये भी x0 वाली टर्म का कोएफिशिएंट है। इन्हें हम ऐड करें, अगर ऐड कर रहे हैं तो हम जो भी साइन असल में ऐड किए गए उनको हम ऐड करें। तो 2 + 1 3, और ये पावर वही रहती है, तो 3x की पावर 0, 3x0 इसका। ये x0 यहाँ लिखा नहीं था मैंने क्योंकि इट इज इक्वल टू 1, तो हम इसको नहीं लिखते। तो ये x0 की दो टर्म्स थी, ये हमने ऐड कर ली। फिर x1, ये x1 की है और कहीं पर x1 की कोई टर्म नहीं है, तो हम खाली एक ही टर्म है और उसके साथ कोएफिशिएंट -1 है, ये -1। सो -1 x1, ये हो गई। फिर हम कहा x2, x2 की एक ये टर्म है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, एक ये टर्म है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, दोनों प्लस के हैं, तो +1 और +1 +2 कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे। पावर एक पोजीशन को शो करती, x2 वही रहेगा, ये x2 ना, पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, मगर पाबंदी क्या है कि एक जैसी पावर वाली टर्म्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपकी पॉलिनोमियल्स की टर्म्स हैं, ये x की 0 वाली टर्म है, ये x की 2 वाली टर्म है, ये x की 3 वाली टर्म है।
तो हम एक जैसी पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। तो x2, ये x2 एक जैसे, इसके कोएफिशिएंट 1 + 1 2, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा है, 2x2, x2 वही रहा। इसी तरह x3 में इधर कोई नहीं है, इधर सिर्फ ये है और उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1x3। बेशक ये 1 हम फिर लिखते नहीं है, इसलिए मैंने, तो इसको ऐड करने से ये आंसर है। सब्ट्रैक्ट और ऐड में कोई फर्क नहीं है। जो नीचे वाली चीज अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर से सारे जब खुलेंगे तो उनके साइन बदल जाएंगे। उस सूरत में अब कैलकुलेशन करें तो ये x2 +1 और -1 0 हो गया, x2 की टर्म गायब हो गई, ये कैंसिल हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करने में ये कैंसिल हो गया और बाकी और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। लेकिन अब नीचे से शुरू करें तब भी x0 वाला ये 2 और 1 है, ये माइनस का है, तो 2 - 1 1, तो ये 1 हो गया। अच्छा जी, x1 वाले में खाली ये प्लस हो गया, +1, तो +1 x1, फिर x2 कैंसिल हो गया, वेनिश्ड, x3 का एक ही टर्म है 1 x3, ये तो ये भी ठीक हो गया। ये सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट हो गया। मल्टीप्लाई इज ए नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम क्या करें मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करने में यहां लिखें तब भी और ब्रैकेट्स में लिखें तब भी। असूल क्या है, मेरा ख्याल है ब्रैकेट्स में लिखते हैं क्योंकि फ्यूचर में भी हमने ब्रैकेट्स में लिखना है। तो हम ये करते हैं कि कोई एक को ये लिखकर, अगर हम यहाँ लिखें इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इन दो चीज़ों को, gx और fx। gx क्या है, ये है, fx क्या है, ये, ठीक है। तो अगर मैं ये gx से fx को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं gx पहले भी लिख सकता हूँ, अब मर्जी है, मैंने इस केस में gx को पहले लिख लिया कि x2 -x और +1। इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है x3 + x2 + 2 से, ये मैंने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब आप ये x2 से क्या करते हैं बारी बारी, जैसे यहाँ लिखें इसके साथ इस पूरे को करेंगे, इसके साथ इस पूरे को करेंगे, इसके साथ इस पूरे को, वही काम हम यहाँ करेंगे। x2 से इस सारे को मल्टीप्लाई करें, फिर -x से इस सारे को मल्टीप्लाई करें, फिर +1 से करें। यानी इसको हम पहले इस तरह लिख सकते हैं कि x2 से तमाम अंदर की चीज़, ये अंदर की चीज़ को मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँगा, ये fx है, ये सारा fx, तो x2 से पूरे fx को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। फिर मैं दूसरी टर्म ले लूँ -x से fx को मल्टीप्लाई करूँ। मैं दोबारा पूरा लिखने के बजाय शॉर्ट लिख रहा हूँ fx। फिर मैं कहूँ कि मैं 1 से fx को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कि ये मैंने लिखने में पूरा लिखने के बजाय इस तरह लिखा है, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो पूरा लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब मैं ये हर एक मल्टीप्लाई की चीज़ों को लिखूं और फिर ऐड जो मैं सीख चुका हूं वो करूं। तो x2 को इससे किया तो x5 + x4। पावर्स ऐड होती हैं जब आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे। अभी इत्तेफाक से यहाँ कोएफिशिएंट्स नहीं है, मगर अगर इसका 3 होता और इसका 5 होता तो 3 × 5 15 हो जाता और x2 × x2 x4 होता। अभी ये 1 थे तो 1 × 1 1 और x2 से x4 हो गया।
x2 x3 से मल्टीप्लाई करके x5, x2 से मल्टीप्लाई करके x4, x2 2 से मल्टीप्लाई करके 2x2। ये आपका पहला वाला काम हो गया 2x। ये मैंने इस काम को पूरा कर लिया। आगे मैं माइनस एक्स से जब ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एक्स से ये सारे, तो ये हो जाएंगे माइनस x4, ये 3 और ये करके माइनस x4। फिर मैं ये करूंगा माइनस x और x2 माइनस x3, माइनस x3। ओके, फिर ये माइनस x और 2 को करूंगा तो माइनस 2x। अब ये वाला काम हो गया। अब मैंने ये काम पूरा कर लिया। अब ये वाला करना है +1, इस +1 से इस सारे को मल्टीप्लाई करना है, नो चेंज, उसको आगे वही लिख लेता हूँ प्लस x3 प्लस x2 प्लस 2। ये मैंने मल्टीप्लाई वाले काम, पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई का एक फेज किया कि हर टर्म को, पहली पॉलिनोमियल की हर टर्म को पूरी दूसरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड करके लिखता गया, साइन को कैटर करते हुए। अब क्या रह गया, अब इन टर्म्स को ऐड करना रह गया, जैसे मैंने यहां किया था, ये जो एडिशन वाला काम किया था अब वो रह गया। तो एडिशन में हमने क्या कहा था कि ऐसी सारी टर्म्स जिनकी पावर एक जैसी हो उनको इकट्ठा करते हैं। तो अब इसमें x5 वाली कितनी टर्म, एक ही है, x5 हमने वैसे लिख देना। ओके, फिर प्लस x4 की टर्म है प्लस x1 और -1, आगे कोई नहीं है, तो ये x4 +1 -1 से 0 हो गया, ये टर्म्स कैंसिल हो गए। फिर क्या रह गया x3, ये -x3, ये +x3, ओके, ये भी कैंसिल हो गया। फिर क्या रह गया x2 में ये 2x2 और ये फिर एक और 1x2, तो ये हो गया 3x2। टू x2 और एक ये 1x, 3x2, 3x2, ओके 3x2। अच्छा जी, ये भी हो गया x2। अब x में क्या है, खाली ये -2x, -2x। फिर क्या रह गया, कांस्टेंट टर्म्स सिर्फ ये 2 है एंड दैट्स इट, प्लस। तो जनाब मैंने पॉलिनोमियल्स को, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो उसका ये तरीका था, ये उसका रिजल्ट है। ओके, ये वो रिजल्ट हैं जो अभी हमने, ये मैंने अभी बनाए आपके सामने डिटेल, ये भी हमने बनाया, ये भी हमने बनाया, ये उसकी कैलकुलेशंस जो अभी हमने डिटेल से की उसके आंसर्स हैं, यू कैन टेल इधर। अच्छा, अब अब प्रॉपर्टीज कुछ इंटरेस्टिंग देखना शुरू करेंगे। एक तो हम कह रहे हैं कि अभी तक हमने नॉर्मल पॉलिनोमियल ली जिसके कोएफिशिएंट्स इंटीजर नंबर हो सकते थे, उसको हमने कर लिया, सीख लिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर यही काम हम बाइनरी वर्ड्स से बनी हुई पॉलिनोमियल्स पे करेंगे तो फिर क्या होगा। अब हमें ये सीखना, हमने पहले इंटीजर नंबर वाले पॉलिनोमियल्स को रिवाइज किया। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास तो जो पॉलिनोमियल अब होगा gf2n में, gf2n का जो पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर एक खास बात होगी। वो क्या होगी कि ये n बिट वर्ड्स हैं बाइनरी के, यानी अगर ये n was 4 तो मेरे पॉलिनोमियल क्या होंगे, मेरे पॉलिनोमियल होगा
n जो है वो 4 अगर है 2 टू द पावर 4 का, तो इसका मतलब इसमें 4 टर्म्स होने चाहिए। एक x टू द पावर 0 की टर्म होने चाहिए, एक x के 1 की टर्म होना चाहिए, एक x के 2 की टर्म होनी चाहिए, और एक x के 3 की। ये मकसद है, ये प्लेस होल्डर का काम करते हैं ये जो पावर्स हैं, कि अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ 2 टू द पावर n, जो कि मैं कह रहा हूँ 2 टू द पावर 4 वाला मैं कर रहा हूँ, अगर 4 बिट के वर्ड्स पे मैंने प्रोसेसिंग करनी है इस मैथ से, तो मैं इसी तरह पॉलिनोमियल लिखूंगा उन बाइनरी वर्ड्स के लिए। प्लेसेस के लिए ये पावर्स हो जाएंगी x0, x1, x2, x3। बाकी कोएफिशिएंट में क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स हैं, तो अब यहाँ पे सेट सिर्फ 0 और 1 के सेट है। अब वहाँ पे तो पूरा इंटीजर का सेट था, यहाँ मेरे पास सेट सिर्फ 0 और 1 का है फॉर द पर्पज ऑफ कोएफिशिएंट, जो कि हमारे केस में हम a कह रहे थे। ai जो मेरा है अब, वो सिर्फ उसमें इंटीजर नंबर नहीं आ सकते, सिर्फ 0 और 1 आ सकता है। तो अब मेरे इस जगह 0 और 1 के पैटर्न हो गए कि अगर मेरा बाइनरी वर्ड फर्स्ट करो था एक पहला 0 1 1 0, और दूसरा बाइनरी वर्ड था 1 0 1 1, ये दो बाइनरी वर्ड। ये मेरा फर्स्ट करो ये fx के लिए ये था f, और ये g ये था। तो अब मैं इसको बाइनरी पॉलिनोमियल में पहले लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा। मेरा अब fx जो होगा इस केस के लिए, इस बाइनरी वर्ड के लिए fx जो होगा वो ये होगा कि पावर्स वही 4 टर्म्स 4 नंबर, इनके ये कोएफिशिएंट यहाँ लिखे जाएंगे। इधर मैं लिखूंगा, मे बी मैं इसको डिफरेंट कलर में लिख दूं। ओके, ये मैं कह रहा हूँ ये 0, यहाँ 0 लिख दूं, फिर ये 1 x1 वाली टर्म, फिर ये 1 x2 वाली टर्म, फिर ये 0 x3 वाली। ये मैंने fx को लिख दिया। अब g के लिए gx को अगर मैं लिखूं, पहले मुझे पोजीशंस के लिए लेना चाहिए। मैं अब gx लिख रहा हूं, तो gx के लिए पहले तो मुझे पोजीशन के लिए लिखना चाहिए कि भाई x0 वही x0 x1, ये प्लस वाला में डालोगे टर्म के लिए, फिर ये x2 वाला लिखना है यहाँ प्लस, फिर यहाँ मैंने x3 वाली टर्म को लिखना है प्लस, इसको भी उसी तरह लिखना। अब इसके जो बाइनरी नंबर्स थे वो कोएफिशिएंट्स होंगे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ओके ये क्या था 1 1 0 1 1 1 0 1। ले मैंने जिस तरह पहले ये पॉलिनोमियल्स थी, इसमें कोएफिशिएंट जो थे वो ये 2 या 3 या 4 इस तरह हो सकते थे, क्योंकि ये इंटीजर वाले कोएफिशिएंट की पॉलिनोमियल्स थी और वहाँ मुझे इंटीजर नंबरों में ये अलाउड था। तो वो इस तरह मैंने उसका काम किया। अब मुझे अगर बाइनरी वर्ड ऐसा है और उसकी पॉलिनोमियल लिखनी है, तो इसमें सारे कोएफिशिएंट या 0 होंगे या 1 होंगे। तो इसके लिए कोएफिशिएंट्स ये हो गए, इसके लिए कोएफिशिएंट्स ये हो गए। अच्छा, अब मेरी ये दो पॉलिनोमियल हो गई। बाइनरी में ऐसे लिखा जाता है वर्ड, पॉलिनोमियल की शक्ल में ये बन गया। अब अगर मुझे कहूँ कि यही सारे काम मैं करूँ यहाँ, कि मैंने ऐड करना है ये इन पॉलिनोमियल का एडिशन, सम वाला काम क्या होगा? सम वाला काम करने के लिए उसी तरह मुझे टर्म्स ऐड करनी है जैसे यहाँ थी, ठीक है। मगर अब क्या होगा, अब एडिशन का मकसद, यहाँ तो 0 और 1 ऐड करूँगा 1, 1 और 0 ऐड करूँगा 1, 0 और 1 ऐड करूँगा 1, लेकिन 1 और 1 ऐड करूँगा तो 2। अच्छा, 2 जो है वो मेरे तो सेट में नहीं है। मेरा सेट जो है ये Z2 का सेट है,
जिसमें Z2 यानी ये बाइनरी नंबरों का सेट है, 0 और 1 हो सकते खाली। अब 2 कहाँ से आएगा? 2 यहाँ से आएगा कि अगर ये सेट Z2 का था, इसका मतलब है ये मॉड्यूलस 2 है, तो मैं 1 और 1 ऐड करूं, उसका मॉड 2 लूं, तो इसका आंसर आएगा 0। तो अगर मैं ये एडिशन का काम करूंगा तो मेरा रिजल्ट होगा यहाँ 1, यहाँ 0, मॉड लेने की वजह से यहाँ 1 और यहाँ 1। और अब इनकी पावर्स उसी तरह रहेंगी, पावर्स एज इट इज नीचे कंटिन्यू करती हैं जब आप ऐड करते हैं। ये x3, ये x2 और ये x1 और ये x0। और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो जो 0 से कोई भी टर्म की पावर होगी मल्टीप्लाई होगी, ये गायब हो जाएगी, दिस विल वैनिश। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है जिसके भी कोएफिशिएंट 0 का, और ये सिर्फ ये रह जाएगा। ये x0 की जगह भी आप 1 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 1, मेरा आंसर होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x3। अब मेरे एडिशन का रिजल्ट, ये एडिशन का रिजल्ट ये बना। अगर मेरे पॉलिनोमियल या नंबर्स ये थे, अगर मेरा 4 बिट वर्ड ये था और उसका रिजल्ट ये बना। अच्छा, सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है, जिस टर्म्स के बाहर माइनस है वो इन्वर्ट, साइन इन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ मैंने जो ये कहा कि ये अब कोएफिशिएंट का एडिशन जो है वो मॉड 2 में करना पड़ा, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है और इसके फिगर 0 और 1 हो सकते हैं, और ये Z2 मॉड्यूलस 2 का कोएफिशिएंट पे अलजेब्रा इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने कहा 1 प्लस 1 वॉज 2, तो 2 मॉड 2 वॉज 0। 2 मॉड 2 का जब मैंने मॉड 2 निकाला तो वो 0 हो गया। 2 मॉड 2 इज 0, इसलिए मैंने ये लिखा 0, ये 0 इसलिए लिखा है। इसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं? हम कहें जब बाइनरी अलजेब्रा में पॉलिनोमियल मैथ्स करें तो कोएफिशिएंट्स के एडिशन का मतलब है कि उन बाइनरी बिट्स का एक्सक्लूसिव और। मैं कहता हूँ जो मैं ऐड करता ही नहीं, मैं इनका एक्सक्लूसिव और लूँगा। अगर मैं ये फैसला कर लूँ तब मेरा रिजल्ट सिंपल और आसान हो जाता है। 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और 1, 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और 0, 1 और 0 का 1, 0 और 1 का 1। तो मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि मैं जब GF2 टू द पावर n में काम कर रहा हूँगा तो एडिशन के लिए कोएफिशिएंट्स के एक्सक्लूसिव और लेना काफ़ी है, दैट्स इट। ये हो गया। अब सब्ट्रैक्शन का मसला रह गया। अगर मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस 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 माइनस। अच्छा जी, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 माइनस 1 का आंसर क्या आ गया? माइनस 1 एक्स की 0। ठीक है, ओके। 1 और माइनस 1 इन्हें ऐड करें तो ये वैसे 0 है। चलो जी, 0 x1, 1 माइनस 0 इज 1, ये तो वही रहेगा 1 x2, और 0 और माइनस 1 से फिर वो आ गया माइनस 1 x3। अब ये माइनस करने का ये रिजल्ट है। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि जब हम मॉड्यूलस, जैसे हमने कहा था हम तो मॉड 2 लेंगे, तो हमने मॉड्यूलस लेना है, तो मॉड्यूलस में हम कहते हैं यार वी डोंट लाइक टू राइट थिंग्स इन माइनस, मॉड कैन कन्वर्ट और माइनस टू प्लस।
एक तरीका ये कि मैं कहूँ -1 का mod 2 लूँ, mod 2 का अलजेब्रा चल रहा है यहाँ, -1 का mod 2 लूँ तो ये +1 हो जाएगा। मैं उसके बाद ये +1 हो गया, इसका ये तो 0 ही है यहाँ इस केस में, 0 का mod 2 लूँगा 0 ही रहेगा, तो ये तो इस केस में ऐसे ही है, कैंसिल। इसका mod 2 लूँ ये भी ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। इसका mod 2 लूँ तो ये भी प्लस का x³ हो जाएगा, ये x² वैसे ही रहा, ये टर्म गायब हो गई थी, ये गायब ही 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो गई। इसका आंसर ये आया, ये भी जो चीज़ है ये 1 है, तो इसका आंसर ये आया x3 + x2 + 1। ये आंसर और ये आंसर x3 + x2 + 1 ये एक ही है। आप देखो कि इस केस में दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का रिजल्ट एक ही है। उसकी वजह क्या है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये -1 अगर इसको मॉड में लिखें तो इट इज इक्वल टू +1, इस -1 को लिखें इट्स ऑल्सो इक्वल टू +1, ये तो 0 है। तो हर -1 कैन बी रिटर्न एज +1 बिकॉज ऑफ mod 2 अलजेब्रा। तो बाइनरी के पॉलिनोमियल्स को इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना या उसके कोएफिशिएंट का एक्सक्लूसिव और लेना, ये एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो -1 is equivalent to +1 in terms of mod algebra। mod algebra में they are same, mod 2 के लिहाज से, mod 2 में not any mod algebra, they are same। और ये एक्टिविटी कैन बी डन कोएफिशिएंट्स में, इस वजह से वी कैन डू कोएफिशिएंट्स की एक्सक्लूसिव और एक्सॉर लें तो हम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जहाँ भी कहीं करनी हो पॉलिनोमियल की बाइनरी में तो हमें आसान है, एक्सॉर ले लो, एक्सॉर ले लो, इनका एक्सॉर लो, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी कुछ करना है, that will solve the problem of addition। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोएफिशिएंट्स का एक्सॉर इज द आंसर फॉर द बाइनरी केस। अब रह गया मल्टीप्लिकेशन, कि ये जो दो बाइनरी वर्ड थे इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा। यहाँ मैं आपको ये वार्न करना चाहूँगा कि आप जो नॉर्मल बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई के लिए पहले 1 से ये सारे किए, फिर इस 1 से ये सारे किए, फिर 0 सारे किए, फिर उन्हें ऐड किया, दैट विल नॉट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट अगर आप बाइनरी में एज इट इज जो नॉर्मल बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते थे वो करेंगे। हाउएवर अगर आप इनको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके यहाँ पॉलिनोमियल जैसे बनाई है वो करके पॉलिनोमियल की मैथमेटिक्स करें या पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करें तो इट विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। तो हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पॉलिनोमियल बनाकर ही करना चाहिए। लेट्स डू दैट। ये मैंने अभी जो आपको सिखाया कि +1 -1 mod 2 एक होते हैं, इसलिए एक्सॉर इज द आंसर, ये मैं सिखा दिया। ये उसी का जो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया। ओके, अब ये था कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर क्या होगा। मल्टीप्लाई में एक तो मैंने बताया कि जिस तरह अभी हमने पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन सीखी है ये वाली, विद 1 and 0 ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 और 0 के साथ। फिर मसला आएगा एक और कि ये पॉलिनोमियल x3 की थी, ये x2 का है, या इसी सवाल को ये वाला इसको कर रहे हैं, जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे
इन टर्म्स की, तो जनाब आंसर यहाँ x3 आंसर कैन बी मल्टीप्लाई करते हुए मैक्सिमम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर x6 तक जा सकती है। अगर ये उसकी टर्म 0 हो जाएगी x5 तक जा सकती है, जैसे ये x3 और x2 x5। चलो ये x3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से ये उड़ जाएगी मल्टीप्लाई होके, मगर x, तो पावर्स जब मल्टीप्लाई करें तो इसकी रेंज से बाहर निकल जाएंगी। पॉलिनोमियल की रेंज कहाँ है? x3 तक है। आपके वर्ड का साइज 4 बिट है, आपके रजिस्टर का साइज 4 बिट है, आपकी पॉलिनोमियल का साइज 4 टर्म्स है, विच इज अप टू x3। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर x6 तक जा सकता है, विच विल मेक इट 7 बिट वर्ड। x0 से x6 तक आंसर आपका 7 बिट में हो जाएगा। आपका रजिस्टर तो 4 बिट था जिस पे काम करना था। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, रजिस्टर की रेंज से बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। पॉलिनोमियल की पावर मैक्सिमम x3 थी, अब वो x7 तक चली गई, तो मल्टीप्लिकेशन में ये मसला नया आएगा। बाकी तो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन जो हमने सीखी है वहां तक तो आप 1 और 0 के साथ बिल्कुल वैसे ही कर लोगे, मगर अब क्या करें? इसका हल जिस तरह कोएफिशिएंट के साथ mod 2 आपने इस्तेमाल किया और उनको अपनी रेंज में रखा, पॉलिनोमियल लेवल के लिए उसको विद इन रेंज लाने के तरीका वही है पॉलिनोमियल लेवल पे। एक चीज हम कहेंगे प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, या मैं आपको इस स्टेज पे कहूँगा मॉड्यूलस पॉलिनोमियल। जैसा इंटीजर नंबरों में मॉड था इंटीजर नंबर का, मैं यहाँ मॉड पॉलिनोमियल कह देता हूँ। मॉड्यूलस की एक पॉलिनोमियल आपको चाहिए होगी जिसकी पावर इतनी हो कि रिमाइंडर इतने बिट्स का है, ठीक। तो इसका मतलब है एक मॉड पॉलिनोमियल चाहिए आपको fx, लेट्स से fx और gx तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसका नाम मैं रख लेता हूँ mx। चल mx मॉड्यूलस पॉलिनोमियल mx, और वो ऐसी हो कि अगर मैं इस आंसर को, जो भी कोई आंसर है, उसको इससे डिवाइड करूं तो मेरा रिजल्ट इस रेंज के अंदर हो, मेरा जो रजिस्टर्स का रेंज है। और वो कैसे पॉसिबल है? अगर मैं मॉड के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरी पॉलिनोमियल की पावर इससे एक ज़्यादा होनी चाहिए, ये x3 तक है। अगर मैं एक पॉलिनोमियल x4 पावर के इस्तेमाल करूँ तो सम x4 मे बी x3 x2 x और 1, ये मैं सारे भी उस पॉलिनोमियल में हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, कुछ टर्म ना भी हो तब भी। मगर अगर x4 पावर का उसके अंदर चीज़ है, तो अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल से किसी भी मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो rx है वो हमेशा मैक्सिमम x3 तक ही जाएगा, क्योंकि जब आप डिवाइजर आपका x4 की पावर का हो, जब तक आप x4 की टर्म्स होंगी आप डिवाइड करते रहोगे। अगर आप x6 से शुरू हुए डिवाइड करना, चलते गए x5 की बन गई, x4 की बन गई, x4 को भी डिवाइड, आप डिवीजन जारी रखते हैं जब तक कि आपका रिमाइंडर इसकी डिवाइजर की पावर से एक कम नहीं हो जाता। अब जो आपका रिमाइंडर का आंसर होगा वो x3 के साथ में भी कुछ और टर्म्स के साथ होगा। ये x4 के साथ था, ये x3। तो हमें जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये बाइनरी पॉलिनोमियल्स की, तो उसको विद इन रेंज लाने के लिए हमें एक मॉड्यूलस पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी पावर नॉर्मल जो ऑपरेंड्स हैं उनकी पावर से एक ज़्यादा हो। अगर वो होगा तो आंसर को हम इससे डिवाइड करेंगे और हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा, और अब हमारा सही साइज में रिजल्ट आ गया। ये हमारा एडिशनल काम है कि हमें
एक तो मॉड चाहिए था कोएफिशिएंट लेवल पे जब ऐड कर रहे हो, जो कि मॉड 2 है, और उसका हल हमने निकाला था एक्सक्लूसिव और। एक ये कि जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और पॉलिनोमियल की पावर बढ़ जाएगी, तो हमें एक और मॉड पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी पावर इससे एक ज्यादा हो और हम उससे डिवाइड करें और रिमाइंडर उस रेंज का आ जाए। ये हमारा तरीका बना। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। ये तरीका आपने डिफाइन कर लिया, हम इसको अभी अप्लाई करते हैं। ये है, इसको प्रिमिटिव, वो जो डिवाइड करने वाली पॉलिनोमियल है उसको इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, मॉड्यूलस पॉलिनोमियल, कुछ भी कह सकते हैं। प्रिमिटिव पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, इररेड्यूसिबल ऐसी पॉलिनोमियल जो रिड्यूस ना हो सकती हो, या मॉड्यूलस पॉलिनोमियल जो मॉड के लिए इस्तेमाल हो, मॉड पॉलिनोमियल। ये हमें एक चाहिए होगी हमेशा जब हम मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारे रिजल्ट विद इन रेंज रहे। एग्जाम्पल, gf to the power n के ऑपरेशन यूजिंग पॉलिनोमियल अरिथमेटिक। Okay, gf to the power n has to the power n elements, each of n bits requires an n degree irreducible polynomial. gf to the power, अब जनरलाइज कर रहे हैं, अगर टू टू द पावर n का हम कर रहे हैं तो जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n होगी। डिग्री, जो आम वर्ड्स होंगे इस अलजबरा में, जो नॉर्मल वर्ड्स होंगे उनकी डिग्री n-1 होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये n बिट का वर्ड है और 0 से हम शुरू करते हैं तो 0 से n-1 तक पॉलिनोमियल जाएगी। तो जो वर्ड्स हमारे पास हैं वो n बिट्स के हैं, उनकी पॉलिनोमियल्स n-1 डिग्री की है। इसको रिड्यूस करने के लिए जो मॉड्यूलस पॉलिनोमियल है वो इस वो n+1 बिट की होगी, जिसका मतलब है n डिग्री। n+1 बिट का वर्ड होगा, वो n+1 बिट के नंबर के मुताबिक होगी, जिसका मतलब है n, उसकी डिग्री n होगी। तो वर्ड्स की डिग्री n-1 और पॉलिनोमियल की डिग्री n। वर्ड्स के बिट n और पॉलिनोमियल के बिट्स n+1। ठीक, एक ही बात है। ओके, अब ये जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हम कह रहे हैं जो डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होगी, ये आपको, क्योंकि हम कह रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक तो ये है कि इसकी पावर ये है, मगर हम कह रहे हैं ये इररेड्यूसिबल है, यानी इस ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके मजीद फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। तो हमें ऐसी उस डिग्री की ऐसी पॉलिनोमियल की ज़रूरत होती है। सारे पॉलिनोमियल उस इस कंडीशन पे फिट नहीं आते, तो आप ढूंढते हो, बनाते हो ऐसे पॉलिनोमियल। ऑलराइट, अच्छा, तो हम यहाँ थे। तो अब हमने कहा लेट्स टेक एन एग्जाम्पल
कंप्लीट एंड वर्क इट। हमने असूल सीख लिए। क्या असूल सीखे? कि जब कभी ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़े, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एक असूल। अगर बाइनरी वर्ड्स के पॉलिनोमियल्स का ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप हमेशा कोएफिशिएंट्स का एक्सक्लूसिव और लो। कोएफिशिएंट्स को एक्सक्लूसिव और लो। एक रूल, रूल 1। रूल 2, जब बाइनरी बिट वर्ड्स के पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई में अगर एक आपको चीज कोएफिशिएंट्स के लिए, तो जब भी कभी ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा तब तो यही रहेगा, लेकिन जब व्हेन पावर विल इंक्रीज मोर देन द गिवन साइज, तो आपको एक मॉड पॉलिनोमियल चाहिए, मॉड्यूलस पॉलिनोमियल mx चाहिए, जिससे आप डिवाइड करें। डिवाइड बाय मॉड्यूलस पॉलिनोमियल mx। ये हमने दो असूल सीखे हैं कि जब बाइनरी वर्ड्स की gf2 टू द पावर n बेस्ड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना हो इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हमने सीख लिए। अब हम इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग, एंड दैट इज इट। पॉलिनोमियल्स का मैं कह रहा था कि लोग हर साइज की बना के उसकी लिस्ट बना के रख लेते हैं। ये इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स हैं। वो कहेंगे अगर तुम्हें डिग्री 1 की चाहिए तो ये भी डिग्री 1 की है, ये भी डिग्री 1, यू कैन यूज दैम। अगर डिग्री 2 की चाहिए तो वो ये है, अगर डिग्री 3 की चाहिए तो उसके ये दो केसेस हैं इररेड्यूसिबल टाइप के। 4 की चाहिए तो एक ये है, एक ये है, एक ये, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। यू कैन चूज कि मैंने ये वाली इस्तेमाल की। ऑल ऑफ देम आर वैलिड इररेड्यूसिबल। इसी तरह 5 की ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये या ये या ये, कोई एक उस अलजेब्रा में आप पॉलिनोमियल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ये मैं आपको बता चुका कि कोई भी पॉलिनोमियल एक जनरल फॉर्म में क्या होती है, n टर्म्स की पॉलिनोमियल या n-1 डिग्री या n टर्म्स, ये n टर्म्स हैं। अगर n बिट का नंबर होगा तो ऐसी n टर्म्स होंगी और पॉलिनोमियल की डिग्री n-1 होगी। ये n बिट नंबर्स और gf2 टू पावर। अच्छा, अब ये एग्जांपल, ऐड एक पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल, मैं अब इसको ओके, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, ये बाइनरी वर्ड से बनी है जैसे मैंने आपको बताई थी। मैं आपको ये पॉलिनोमियल दे दूं या बाइनरी नंबर्स दे दूं, यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ बाइनरी वर्ड टू ए पॉलिनोमियल। And if I give you a polynomial and you need a binary word, you can convert it into a binary. ये आपको आता है, ठीक है। चलें जी, मैंने इस सवाल में आपको पॉलिनोमियल दे दिए, ये दो पॉलिनोमियल, और मैंने कहा सॉल्व इट इन gf2 टू द पावर 8। सॉल्व क्या करना है? ऐड करना है। इन दो को ऐड करो। पहला स्टेप, आपके वर्ड का साइज क्या होना चाहिए ये आप डिसाइड करो शुरू में ही। अगर ये gf2 टू द पावर 8 है तो आपका रजिस्टर का साइज 8 बिट का है। आपकी पॉलिनोमियल के अंदर 8 टर्म्स होनी चाहिए। आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 7 होगी, क्योंकि पहली टर्म x पावर 0 से शुरू होती है, तो डिग्री 7 होगी। नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगे अगर gf2 टू द पावर 8 है। ये तय होकर अब आप इस पॉलिनोमियल को भी लिख लें, इसको भी लिख लें और ऐड कर दें।
पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाली। इसमें मुझे पता है कि अगर ये 8 टर्म्स हैं तो ये x0 वाली टर्म यहाँ आएगी, 1 x1 वाली यहाँ, 2 3 4 5 6 7, नीचे भी x0 x1 x2 x3 x4। ये दो पॉलिनोमियल मुझे लिखनी है जिनकी टर्म्स की तादाद 8 है और उनकी पावर्स इस तरह हैं। ये पहले से मैं लिख दूंगा स्केच। अब मुझे ये वाला नंबर लिखना है तो इसमें जहां जहां टर्म्स हैं, x5 है इस जगह मैं 1 लिखूंगा, x2 है इस जगह मैं 1 लिखूंगा, x है इस जगह मैं 1 लिखूंगा। बाकी जो टर्म्स नहीं है इसका मतलब है उनके कोएफिशिएंट 0 थे, तो उनके साथ में 0 कोएफिशिएंट, 0 कोएफिशिएंट, 0 कोएफिशिएंट, 0 कोएफिशिएंट, 0 कोएफिशिएंट। तो मैंने इसको अब लिखा तो ये बने। ये पॉलिनोमियल पूरे उसमें अगर लिखा जाए 8 बिट बाइनरी वर्ड में तो इसका बाइनरी वर्ड बनेगा 0 0 1 0 0 1 1 0, ये बनेगा। और अगर मैं टर्म्स सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये रह जाएंगे उसमें, क्योंकि 1 सिर्फ इन जगहों पे है, बाकी जगह 0 है। पॉलिनोमियल में फिर वो ये हो जाएगा, बाइनरी में ये होगा, बाइनरी में it will be 0 0 1 0 0 1 1 0। ओके, चलो अब दूसरी, इसी तरह 8 पोजीशन, जहां जहां टर्म्स हैं वहां 1, x2 पे 1, x0 पे 1, बाकी जगह 0 0 0। तो बाइनरी वर्ड यहाँ का क्या है, इस पॉलिनोमियल का वर्ड क्या है, 0 0 0 0 1 1 0 1, ये इसका बाइनरी वर्ड है इसका। ओके, तो आप इसमें अगर ये बाइनरी वर्ड है तो आप कहें कि ऑलराइट, मैं इसको इस तरह ये कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने कहा कि ये अब मैं इन दो पॉलिनोमियल्स को gf⁸ में ऐड करना चाहता हूँ। मैंने ये लिखा, ऐड करने का क्या मतलब होता है, कोएफिशिएंट का एक्सक्लूसिव और, तो 0 1 1 1 0 0, नहीं सॉरी ये 1 है और ये 0, ये 1 होना चाहिए। ओके, लेट मी करेक्ट, ये 1 है ये 0 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 1 0। अच्छा, मैं वो ये जो पीछे ये वाले लिखे हुए थे, चलो 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0, तो 0 0 1 0 1 0 1 1, और इनके साथ ये पावर, यहाँ x0, यहाँ x1, यहाँ x2, यहाँ x3, यहाँ x4, यहाँ x5, यहाँ ये पावर वैसे लिखी जाएंगी। ये बात यहाँ ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, जो मैंने काम किया है ऐड करके वो ये लिखा हुआ। इसमें फिर आप सिंप्लीफाई करने के लिए जिस जिसके साथ 0 है वो टर्म्स गायब हो जाएंगी, ऐड होने के बाद ये टर्म्स वैनिश कर गई, ये वाली, और क्या रह गया, x5 x3 x, एंड ये भी 1 हो जाएगा, n1 x5 x3 x1। इनको ऐड करने का, अगर मैं इन दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करूं अंडर gf⁸ तो मेरा आंसर ये है। ओके, सब्ट्रैक्ट का मतलब कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने में भी मैंने देखा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही चीज है, एक्सक्लूसिव और ही लूंगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा तब भी एक्सक्लूसिव और लूंगा, तब भी यही रिजल्ट रहेगा, नो चेंज। ठीक, ये वाला पॉलिनोमियल मैंने लिखा था कि ये बाइनरी वर्ड है, ये पॉलिनोमियल ये बाइनरी वर्ड। अगर आपको मैं ये वर्ड दूं तो आप ये पॉलिनोमियल बना लो, और कहीं आंसर आ गया ये पॉलिनोमियल तो उसका वर्ड बना। वर्ड और पॉलिनोमियल 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ये जो मेरा रिजल्ट आया था, जैसे ये रिजल्ट आया मेरा ऐड करके, अगर मैं कहूँ कि इसका वर्ड बताओ, कोई मुझसे कहे इसका वर्ड बताओ,
तो इसका वर्ड मैं, क्योंकि ये 8 बिट का नंबर है तो इसका मैं वर्ड बता सकता हूँ, वो यही होगा जिसमें सारी टर्म्स हैं। यानी ये 1 होगा, ये वाला 1 होगा, उसके बाद x2 नहीं है तो उसका 0 होगा, x3 है तो उसका 1 होगा, x4 नहीं है तो उसका 0, x5 का 1, x6 का 0, x7 का 0, तो ये वर्ड बनेगा। ओके, अगर पॉलिनोमियल है तो वर्ड बन सकता है, वर्ड है तो पॉलिनोमियल बन सकता है। तो ये उसके आंसर का ये वर्ड है जो मैंने अभी बताया। ओके जी, अब क्या रह गया, एक आखिरी स्टेप स्मॉल रह गया, सारे काम हो गए, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, अब इन्हीं पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है gf2⁸ में। ऑलराइट, वही पॉलिनोमियल, अच्छा नहीं, अब ये एक और एग्जांपल है जो मल्टीप्लाई किए, एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, gf2⁸ का अलजेब्रा इस्तेमाल करना है, और इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल या मॉड्यूलस पॉलिनोमियल ये है, ये चीजें आपको दी हुई हैं। अब आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्या करें, पहले इन पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई, उस असूल के तहत करें कि भाई ये x5 वाला x7 वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये x5 x7 वाले से, x4 से, x3 से, x2 से, और इस तरह ये सारे नंबर आप लिखेंगे। जब आप ये मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो जहां भी आपके, उसके बाद ऐड करने के लिए, ऐड करने में जो भी दो टर्म्स एक जैसी होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। यानी जहां भी 2 दफा x5 या x4 या x3 आया, वो ऐड करते वक्त वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ 1 + 1 इज 0। जहां भी दो टर्म एक जैसी हुई वो ऐड करते वक्त कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, और आपके पास इस केस में ये आंसर आ गया। ये इसका आंसर है, आगे देख लेते हैं। ये इसका आंसर था x5। ये मैं मल्टीप्लाई के प्रोसेस को दिखा रहा हूँ, इन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या होता है, x5 को इस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, x2 को उस पूरी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, फिर x को उस पूरी पॉलिनोमियल। ये जब मैंने मल्टीप्लिकेशंस की तो ये आ गया आंसर, पावर्स ये आ गए। इन पावर्स में अब मुझे ऐड करना है, ऐड करने में जहां भी एक जैसी पावर, x9 और x9, ये कट गया, ये x9 दोनों, क्योंकि ये 1 1 0 ऐड करते हैं तो एक्सक्लूसिव और होता है 0। इसी तरह x8 ये वाला और x8 ये वाला कैंसिल हो गए, x7 नहीं कैंसिल हो रहा, आगे बस आगे और कोई, ये x6 ये कैंसिल हो रहा है, x5 ये और ये कैंसिल हो गए, x4 ये वाला और ये वाला, तो एक जैसे टर्म, फिर x3 ये वाला, एक जैसे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या रह गया मेरा, ये x12 x7 एंड x2, ये मेरा मल्टीप्लाई करने का आंसर आया। मगर इसके अंदर पावर इज मच बिगर जो gf2⁸ को अलाउ है। gf2⁸ में 8 टर्म्स होती है, तो मैक्सिमम पावर तो x7 होनी चाहिए। यहाँ पे मेरी x12 हो गई, ये तो मेरी रेंज से बाहर चली गई। अब मैं मॉड्यूलस पॉलिनोमियल निकालूंगा, ये रही मॉड्यूलस पॉलिनोमियल। मैं कहूंगा ओह, इस मॉड पॉलिनोमियल से डिवाइड करके आई कैन ऑलवेज ब्रिंग इट इन रेंज। क्यों, मॉड पॉलिनोमियल की पावर x8 है, ये अगर डिवाइड में इससे किया तो रिमाइंडर की पावर x7 होगी, एंड दैट्स इट, वही मुझे चाहिए। रिमाइंडर आंसर की साइज मेरा 7 तक होना चाहिए, इसलिए मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं और जो आंसर आए रिमाइंडर, दैट्स द आंसर। तो मल्टीप्लाई का आंसर ये होगा। अब मैंने यहां कह दिया कि ये 12 की पावर का था, तो मैं इससे इसको मॉड लूं, ये मॉड लिया मैंने, डिवाइड कौन सा वाला किया, मॉड वाला डिवाइड करके रिमाइंडर लिखा, ये रिमाइंडर है, ये rx है,
ये मेरा आंसर है। अब मैंने यहाँ कह दिया डिवाइड करूंगा मॉड और रिमाइंडर निकालूंगा, ये ज़बानी कह दिया। इसकी डिटेल कैसे डिवाइड करूंगा वो ये है। ये मेरा था x12 x7 x2, ये मेरा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं। ये यानी मैं ये काम कर रहा हूं, ये इसको डिवाइड कर रहा हूं इससे। ये डिवाइड किया, कैसे होगा? पहले ये पावर्स का x4 और ये 12 x4 आएगा। ये x12 था, ये x4 है, तो कोशेंट में x4। इस x4 से सारे को मल्टीप्लाई करूंगा, ये चीजें आ जाएंगी। ओके, ये 4 8 से 12, 4 4 से 8, 4 3 से 7, 4 1 से 5 एंड 4 इस 1 से 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब मुझे इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है ऐड करना। ऐड करने का मतलब है सिमिलर पावर वाली चीजों को एक्सक्लूसिव और लेना उसके कोएफिशिएंट का। तो इसमें जब एक जैसे हैं ऐड करने में, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी रह गए ये x8 x5 x4 एंड x2, ये रह गए। अब इसको डिवाइड करना है, x8 बाय x8 पावर 1, यहाँ वो कोशेंट 1 आ गया, 1 से ये मल्टीप्लाई करें तो ये सारी चीज पूरी लिख ली। अब इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये रह जाएगा x5 x3 x, ये रिमाइंडर है rx, एंड दैट इज द आंसर ऑफ आवर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अब ये रिड्यूस करके रेंज में आ गया, और यही आंसर था हमारा यहाँ जो हमने लिखा था, मगर उसकी डिटेल हमने यहाँ देखी कि कैसे डिवाइड करना। डिवाइड करने में बाकी चीज नॉर्मल है, सिर्फ ये है कि ऐड करते वक्त कोएफिशिएंट का एक्सक्लूसिव और लेते हैं जैसे हमने पहले लिया, या ऐड या सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी वही है, ऐड भी वही है, एक्सक्लूसिव और, एंड दैट्स इट। अगर मैं आपको यही प्रॉब्लम पॉलिनोमियल की शक्ल की बजाय इन पॉलिनोमियल्स के बाइनरी वर्ड्स की शक्ल में दे दूं, इसका बाइनरी वर्ड मैंने फाइंड किया था, वो ये था, ये पहली पॉलिनोमियल का बाइनरी वर्ड है, ये दूसरी पॉलिनोमियल। अगर मैं आपको उस प्रॉब्लम के बजाय ये प्रॉब्लम दे दूं, तो भी इसका मतलब यही है कि मैंने आपको सेम प्रॉब्लम दिया। पहले आप इस बाइनरी वर्ड की पॉलिनोमियल बनाओगे, ये, फिर इस बाइनरी वर्ड की पॉलिनोमियल बनाओगे, ये, और फिर आपका ये सवाल वही हो गया जो अभी आपने सॉल्व किया, ये रहा, ये x7 वाला। तो अगर आपको बाइनरी वर्ड्स दिए जाएं तो डोंट गेट इनटू द ट्रैप ऑफ जो नॉर्मल आप करते थे, वो 0 1 0 1 1 मल्टीप्लिकेशन करते थे। ये आपको मैं इस तरह ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख दूंगा, नहीं, आपने पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करके उसे रिड्यूस भी करना है। आप खाली इस पॉलिनोमियल से आंसर नहीं बनेगा। अब जो ये रिजल्ट है इसको रिड्यूस करना है बाय यूजिंग दिस पॉलिनोमियल। ये बाइनरी वर्ड भी एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, इसकी पॉलिनोमियल बना लो, वो यही है जो पहले थी। तो आप अगर इन बाइनरी वर्ड्स को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके ये अलजबरा करें, और जब फाइनल आंसर आ जाए तो उसको बेशक आप दोबारा बाइनरी में लिख लें। जैसे आप इस बाइनरी का अलजबरा करेंगे और आपका फाइनल आंसर इसमें आएगा ये वाला, ये आएगा, तो आप इसको दोबारा बाइनरी में लिख लें। ये इसको लिखेंगे जी ये मेरा यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 4 x4 की जगह 1 है, नहीं x4 की जगह 0 है, फिर x5 की जगह 1 है, फिर x6 की जगह 0, x7 की जगह 0। तो आपका आंसर ये है 0 0 1 0 1 1। ये आपका ये आंसर और ये बाइनरी का आंसर एक ही है। तो इसमें आप कैलकुलेशन इस केस में भी पॉलिनोमियल में करोगे, और जब आंसर आ जाएगा उसको दोबारा बाइनरी में लिखोगे और कहोगे ओके मेरा आंसर ये है बाइनरी में। तो नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इवन इफ इट इज गिवन इन दिस बाइनरी और GF टू द पावर 8 में करना है, यू ऑलवेज डू बाय द पॉलिनोमियल मेथड, और जब भी चाहें तो आंसर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते। तो दैट्स इट।
we had to learn about the gf to the power n maths, और हमने इसके सारा gf to the power n में वर्ड्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, n बिट वर्ड्स की कैलकुलेशन करने का तरीका सीख लिया है। ये मैथ्स डायरेक्टली हमें एएस में काम आएगा। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर दिस मैथ? एंड दैट्स ऑल। जो एडिशनल मैथ मैंने कहा था हमें सीखना है वो सिर्फ ये था, gf टू द पावर n का मैथ। अब हमें ये आ गया है, अब हम एएस पे मूव कर सकते हैं। देयर इज नो अदर मैथ जो हमने सीखना है। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर दिस today's math? You are fine with it? No problem, no question? Clear? Clear. All right, very good. So we can end here and then continue next time our AES algorithm. Okay? Okay, sir. Allah Hafiz.